क्वेटा में अच्छा इलाज एक ख्वाब बनता जा रहा है। शहर के वस्त में प्राइवेट अस्पतालों और मजाफात में अताई डॉक्टरों की भरमार ने तिब जैसे मुक़द्दस पेशे को एक कारोबारी सनत में तब्दील कर दिया है। सेमच अस्पताल हम लेके गया था, प्राइवेट लेके गया, 6,000 में हमने इसको 2 एक्सरे करवाया था, इसको दिखाया था, बोलता है इसका कोई काम नहीं, हम लोगों का कोई काम नहीं, खाली बस तुम इसको दाखिल करो। 10 दिन से मैं ये वार्ड में पड़ा है, इसको आज तक एक सुई भी नहीं लगा हुआ है, बस खाली ऑपरेशन थिएटर में पड़ा है बस। ये कोई कारोबारी मरकज नहीं बल्कि क्वेटा शहर के एक प्राइवेट अस्पताल का अंदरूनी मंजर है। यहाँ पर सैकड़ों मरीज और उनके रिश्तेदार डॉक्टर्स की तवज्जो के मुंतजर हैं। प्राइवेट अस्पतालों में हर वक्त मरीजों और तीमारदारों की लंबी कतारें नजर आती है। गुज़श्ता चंद सालों में प्राइवेट अस्पतालों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसकी सबसे बड़ी वजह अफगानिस्तान से मरीजों की आमद और सरकारी अस्पतालों में इलाज व मालजे की सहूलतों का फुकदान है। मेरे वालिद साहब ऐड के मरीज़ है, सिविल अस्पताल में दाखिल है, कोई डॉक्टर उसको देखता नहीं है, न कोई इससे पूछता है, न कोई उससे आता है। ये भी नहीं कहते हैं कि भाई आपको कोई चीज़ ज़रूरत हो या कोई इंजेक्शन वगैरह की ज़रूरत हो तो हम खुद मंगवाते हैं और ख़ुद जो है ना बाहर से लेकर खुद लगाते हैं। अफगान खाना जंगी की वजह से अफगानिस्तान के शोरिश ज़दा इलाकों के लोग इलाज व मालजे के लिए क्वेटा का रुख करते हैं। ये नाख्वानदा अफगान बाशिंदे बहारी रकूम शहर के प्राइवेट अस्पतालों में इलाज व मालजे पर खर्च करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने क्वेटा शहर में एक सनत की शक्ल इख्तियार कर ली है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जनूबी अफगानिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में जो मरीज़ हैं या उनके रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर इलाज मालजे के लिए क्वेटा शहर आते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक अफगान बाशिंदा मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो कब से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और उनके यहाँ पर आने की वजह क्या है। तकबलुम रावशिस्तानुम सदी मालूम अख्तियार मोहम्मद बेरा तो तल څنګه راغلی زه دا ډاکټر صاحب لراغلی یم چې دا لور می جوړ شي یہ تھے افغانستان کے شورش زدہ صوبے ارزگان کا رہائشی. ان کا کہنا تھا کہ ان کی بچی گزشتہ کئی ماہ سے بیمار ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان پرائیویٹ اسپتالوں میں کوئی 1 لاکھ روپے سے زائد جو ہے خرچہ کیا ہے مگر ابھی تک ان کی جو بچی ہے وہ ابھی تک بیمار ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی بچی کس حالت میں یہاں پر سوئی ہوئی ہے اور اس افغان باشندے کا یہ کہنا ہے کہ وہ کئی گھنٹوں سے اس پرائیویٹ اسپتال میں انتظار کر رہے ہیں مگر ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کوئٹہ شہر کے جو اسپتال ہیں وہ اب ایک صنعت کی شکل اختیار کر چکے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانستان خاص کر جنوبی افغانستان کے جو شورش زدہ صوبے ہیں ان سے بہت بڑی تعداد میں جو مریض ہیں وہ کوئٹہ شہر آتے ہیں اور پھر نتیجتاً پھر کوئٹہ شہر میں خاص کر جو پرائیویٹ اسپتال ہے ان پر کافی بوجھ پڑ جاتا ہے. ویسے ہی کوئٹہ شہر یا بلوچستان کے جو دیگر علاقے ہیں ان میں سرکاری اسپتالوں کی جو حالت ہے وہ انتہائی خراب ہیں. وہاں پر نہ ڈاکٹر دستیاب ہیں نہ دوائی ہے اور وہاں سے مریض مایوس ہو کر چاہے مقامی ہو یا غیر مقامی وہ پرائیویٹ اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں. اسپتالوں میں میڈیا کو دیکھتے ہی سیکیورٹی گارڈز چوکس ہو جاتے ہیں. بھائی جان ہم راستہ بند نہیں کریں گے, ہم لوگوں سے بات کریں گے. آپ کھڑے ہیں نا, ابھی ہم کھڑے ہیں, یہ راستہ بند ہو گیا سر. آپ اگر نکل جائیں گے تو راستہ بند نہیں ہوگا. آپ لوگ ادھر سیٹ ہو گے تو راستہ کھل جائے گا. ہم ہٹ گئے, بالکل آ جائیں جس نے گزرنا ہے. شہر میں جگہ جگہ میڈیکل سٹورز قائم کیے گئے ہیں. ان میں فارماسسٹ نہیں بلکہ بہت کم تعلیم یافتہ لوگ تعینات ہوتے ہیں. گزشتہ دنوں ضلع انتظامیہ نے غیر قانونی میڈیکل سٹور مالکان کے خلاف کارروائی کی. کارروائی کے دوران 2 درجن کے قریب میڈیکل سٹورز بند کر دیے گئے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا. ان میں ایک تو یہ فریج آئٹمس ہیں, ٹھیک ہے, ان کو انہوں نے سمپل روم ٹیمپریچر پہ رکھا ہوا ہے تو اس کی شیلف لائف جیسے کم ہو جاتی ہے اور اس کی جو ہے نا مطلب اس کا وہ رزلٹ نہیں رہتا جو رزلٹ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ بھی کافی اس کی ایفیکیسی برقرار نہیں رکھتے. آیا یہ ہے نہیں ہے, ڈی ٹی ایل ہم اسے بھجوا دیتے ہیں سیل کر کے, پھر ڈی ٹی ایل اس کو اپنا رزلٹ دیتا ہے, پھر آگے ہم لوگ بھجواتے ہیں. کوئٹہ میں ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر حضرات اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں تو ہڑتال کرتے ہیں لیکن اپنے پرائیویٹ کلینکس میں وہ بدستور مریضوں کی چیک اپ کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر اغوا ہوا ہے, اس کے سلسلے میں بھی ڈاکٹرز نے آج کل ہڑتال کا سلسلہ شروع کیا ہے. یہ ایک عجیب بات ہے کہ ڈاکٹرز آپ کے سرکاری اسپتال میں تو نہیں ہوتے لیکن پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں. یہاں پہ میں دکھ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈاکٹر اغوا ہوتا ہے یہ کوئی مریض اسے اغوا نہیں کرتا ہے.
हेल्थ डिपार्टमेंट उसे अगवा नहीं करता है, न ये हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको प्रोटेक्शन दें। प्रोटेक्शन देना ये होम डिपार्टमेंट का काम है, हमारी एजेंसियों का काम है, उसको सर्च करना हमारी एजेंसियों का काम है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जो मिसहैप्स होता है यानी जिस डिपार्टमेंट ने किया आप उसको सज़ा नहीं देते हैं, अपने ही डिपार्टमेंट को आप सज़ा देते हैं, ये समझने से मैं कासिर रहा हूँ। यही कम्युनिटी जब खुद सेफ नहीं है तो वो काम क्या करेंगे, वो गरीबों को क्या इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करते हैं जबकि वो खुद स्क्वायर नहीं है। रोज़ाना उनकी मारपीट हो रही है, वो अपने घरों में महफूज नहीं हैं, वो रोडों पे महफूज नहीं रहे, वो अपने क्लिनिकों में महफूज नहीं रहे। तो इन हालात में ना हम किसी को सर्विस दे सकते हैं, न कि हमारे अवाम हमसे जो ये तवक्को रखे। तो इसका जो कुछ भी होगा हमारे अवाम से, हमारे किसी अवाम के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। ये भी एक हकीकत है कि हुकूमत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। डॉक्टर हजरात का मौक़िफ़ है कि जब उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता तो वो मरीजों का इलाज कैसे कर सकते हैं। ये जिस प्रोफेसर की बात हो रही है, प्रोफेसर मुमताज़ जो फिजियोलॉजी के इंचार्ज हैं, 8:30 बजे जो है वो अपने अगर घर से उठाए जाते या जिन्ना रोड से उठाए जाते या किसी और जगह से बाग से या ये कॉलेज के पास से अपने ड्यूटी आवर्स में, जहाँ के एक कोने पे एफसी का एक चेक पोस्ट है, दूसरे कोने पे दूसरा एफसी का चेक पोस्ट है। ये जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है कि हमारे इस प्रोफेसर को इस तरह से सुबह सुबह अलल सुबह वर्किंग आवर्स में उठा के ले गए। इसका ये मतलब है कि हम कहीं स्टैंड नहीं करते, हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इस मसले का हल निकाला जाए। ये क्या है, क्या ये क्यों ये अगवा बराए तावान है, हमें पूरी हकीकत बताई जाए। महकमा सेहत में रोज़ बरोज़ संगीन तर होने वाली सूरत हाल वसाइल की कमी नहीं बल्कि इस शोबे से वाबस्ता अफराद की लापरवाही और तवज्जो की कमी भी है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, देखते रहिए डॉन न्यूज़।